قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی کامیاب سیاسی پاور شو کی تیاریاں جاری ہے۔ شاہدرہ میں سٹیج لگا دیا گیا ہے۔ آج شام 6 بجے مریم نواز اور حمزہ شہباز جلسے سے خطاب کریں گے۔ جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو واپسی کے اعلان کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنے قائد نواز شریف کی استقبال کے لیے کارکنان کو متحرک کرنے کے لیے جلسوں کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے آج لاہور کے علاقے شاہدرہ میں اپنا پہلا جلسہ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ یہ جو حلقہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے جو پرانے رہنما ہیں ملک ریاض NA123 کا یہ حلقہ کہلاتا ہے، ملک ریاض کے حلقے میں جو ہے وہ یہ جلسہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جلسے کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں، ڈیک لگائے جا رہے ہیں، لاؤڈ سپیکرز لگائے جا رہے ہیں، جبکہ اس وقت آپ کو بتاتا چلوں تو سٹیج جو ہے وہ مکمل طور پر تیار کر لیا گیا ہے۔ 16 فٹ لمبا اور 8 فٹ اونچا جو سٹیج ہے وہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ میرے پیچھے کیمرہ مین ذیشان آپ کو دکھا سکے تو لاؤڈ سپیکر بھی پہنچا دیے گئے ہیں اور 2 بڑی بڑی سکرینیں جو ہیں وہ بھی یہاں پہ نصب کر دی گئی ہیں، کرسیاں یہاں پر لا دی گئی ہیں۔ 6 بجے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور نائب صدر حمزہ شہباز جو ہے وہ اس جلسہ عام سے خطاب کریں گے اور کارکنان کا جو لہو ہے وہ گرمائیں گے۔ جبکہ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں تو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں اس حوالے سے کارکنان کو ہدایت ہے وہ بھی جاری کریں گے، جبکہ ممکنہ طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں جلسہ بھی جو وہ کیے جانے کا امکان ہے، جس کے حوالے سے کارکنان کو ہدایت دی جائے گی اور باقی رہنما بھی اس جلسے میں جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ 6 بجے جو خطاب جو ہے وہ مریم نواز کا رکھا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے جو ہے وہ 3 بجے کے قریب کارکنان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ متوقع ہے، جبکہ اس وقت جو ہے وہ تیاریاں عروج پر ہیں۔ اس پورے ایریا ہے یہ تقریباً ایک بازار ہے شاہدرہ کا جہاں پر یہ جلسہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 1000 سے زائد کرسیاں جو ہے یہاں پہ پہنچائی گئی ہیں جو یہاں پر جلسہ گاہ میں لگائی جائیں گی اور 3 بجے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ 6 بجے مریم نواز جو ہے وہ خطاب کریں گی۔ میرے پیچھے اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو سٹیج جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ سٹیج سے آگے جو ہے وہ خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں۔ اس سٹیج پیچھے سے انٹری جو ہے وہ مریم نواز اور دیگر قائدین اور حمزہ شہباز کی جو انٹری ہے وہ پیچھے سے رکھی گئی ہے، جس کے بعد وہ اس سٹیج پر جو ہے وہ چڑھ کے کارکنان کو یہاں سے جو ہے وہ لہو گرمائیں گے۔ پارٹی پرچم جو ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں، کیمرہ مین دکھا سکے تو فلیکس جو ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں، بڑے بڑے فلیکس مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے، جس پر جو ہے وہ یہ الفاظ جو ہے وہ لکھے گئے ہیں کہ امید سے یقین تر پاک سرزمین تک، اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ ان فلیکس پہ لکھے گئے ہیں۔ یہ تمام تر جو تیاریاں ہیں، تمام تر جلسے ہیں، یہ کارکنان کا لہو گرمایا جا رہا ہے، جس پر جو ہے وہ 21 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی واپسی کے استقبال کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے آج جلسے اور جلوس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین علی۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان ہے۔ پیٹرول 8 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 323 روپے 38 پیسے لیٹر کر دی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے کمی کے بعد نئی قیمت 318 روپے 18 پیسے مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے۔ مہنگائی میں جکڑے عوام کے لیے کچھ ریلیف۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول 8 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 323 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے کی کمی، نئی قیمت 318 روپے 18 پیسے مقرر۔ مٹی کا تیل 7 روپے 53 پیسے سستا کر دیا گیا۔ 1 اکتوبر کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ریلیف دینا چاہتی ہے تو پیٹرول کی قیمت 100 سے 150 روپے فی لیٹر تک ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی پیٹرول ڈلوا سکے۔ جب پیٹرول مہنگا کیا جاتا ہے تو 20 روپے اضافے کے ساتھ کیا جاتا ہے اور جب سستا کرنے کی باری آتی ہے تو صرف 7 یا 8 روپے فی لیٹر سستا کیا جاتا ہے۔ جس آدمی کی دہاڑی 1000 روپے ہے وہ 324 روپے کا پیٹرول ڈلوائے گا تو بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا؟ کم از کم پیٹرول 150 روپے لیٹر ہونا چاہیے کم از کم۔ جب پیٹرول کا ریٹ بڑھاتے ہیں 30-40 روپے ریٹ بڑھاتے ہیں تو جب کم کرتے ہیں 2-3 روپے کم کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، کم ہونی چاہیے۔ جیسے ملک کے حالات ہیں نا، غریب کو تو چاہیے کہ وہ کھانا ہی بہت مشکل پورا کر رہا ہے،
पेट्रोल तो डलवाने की इसकी हैसियत नहीं है। तकरीबन 120-30 रुपये लीटर होना चाहिए, ताकि किसी ने आना जाना हो ना 1 लीटर में भी सुकून से आ जा सके। अफोर्डेबल यार कम से कम 150 के राउंड अबाउट होनी चाहिए, जो पहले सीज़न में चलती रही है। और अब के जो है, लेकिन अब तो कोई गरीब बंदा दिलवा ही नहीं सकता, किसी की मजदूरी इतनी नहीं होती जो पेट्रोल पे डलवा सके, बस मजबूरी है कि गुजारा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद बेहतरी की कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से आवाम को मजीद रिलीफ देना होगा। कैमरामैन फैसल के हमरा शाहजेब, लाहौर न्यूज़। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं कि 8 रुपए कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम 120 से 150 रुपए तक कमी होनी चाहिए। मजीद उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। बढ़ाने को तो ये लोग जो है 26 रुपए रात को सोए हुए बढ़ा देते हैं। 8 रुपए जो है कम होने से उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि जो सवारी है वो एतराज़ करेगी रिक्शे वालों को किराया कम करें, लेकिन जब वो 50 रुपए 26 रुपए 30 रुपए बढ़ता है उस वक्त सवारी कोई भी नहीं कहती है कि जो है अब ज़्यादा होना चाहिए किराया। 26 रुपये बढ़ा था तो 8 रुपये सस्ता करने से क्या फ़ायदा होगा जी? बताएं ना मुझे। फ़ायदा होना चाहिए, कम से कम 100 रुपये कम होना चाहिए ताकि हम लोगों को रिलीफ मिले। मेरा नहीं ख्याल कि रिलीज़ मिलेगा किसी भी बंदे को ये 8 रुपये कम करने से। इसे तो मेरा ख्याल है 120-130 तक आना चाहिए। जितनी महंगाई है, जो हम जैसे लोग हैं जो अपना कहते हैं सफ़ेद पोश लोग हैं, वो तो बेचारे तंग आ गए हैं ज़िंदगी से। थोड़ा सा लीव करते हैं, ये कोई लीव नहीं है। हाँ जी, ये कम से कम 120-150 रुपये में पेट्रोल होना चाहिए, फिर हमको समझ लगती है। आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल सस्ता, मगर कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन मजीद बढ़ा दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन में 88 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जबकि तेल कंपनियों का 47 पैसे और डीलर्स का मार्जिन फी लीटर 41 पैसे बढ़ा दिया गया। 16 सितंबर को भी पेट्रोल डीजल पर मार्जिन बढ़ा दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, जाहिद आबिद से। जाहिद बताइएगा। बिल्कुल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स की जानब से गुज़श्ता चंद माह से ये मुतालबा किया जा रहा था कि उनके मार्जिन में इजाफा किया जाए, और जाने वाली हुकूमत की मुआहदा कर दी थी, जिसके तहत बतदरीज इनके मार्जिन में इजाफा किया जा रहा है। इस मरतबा तेल कंपनियों के मार्जिन में 47 फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि डीलर्स मार्जिन में फी लीटर 41 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीलर्स मार्जिन 7 रुपये 41 पैसे फी लीटर से बढ़कर 7 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी मार्जिन 6 रुपये 70 पैसे से बढ़कर 7 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गया। इसी तरह पेट्रोल पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन है वो 6 रुपये 47 पैसे से बढ़कर 6 रुपये 94 पैसे फी लीटर कर दिया गया है। इससे पहले 16 सितंबर को भी पेट्रोल डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डीलर मार्जिन में फी लीटर 88 पैसे इजाफा किया गया था, जिसकी वजह से इन कंपनियों के जो मुतालबात हैं वो बतदरीज माने जा रहे हैं, जो कि इनकी जानिब से मुतालबात गुज़श्ता चंद माह से किए जा रहे थे। जी ठीक है जाहिद, ये भी बताइएगा कि इसके साथ अवाम का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी बिल्कुल, अवाम इस वक्त यकीनन ये सोच रही थी कि जैसा कि एक वफाकी वजीर की जानिब से ये कहा गया था कि 15 से 20 रुपये फी लीटर तक कमी की जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से अवाम यकीनन मायूस है। लेकिन इस वक्त जो कीमत है उसमें 8 रुपये का जो कमी की गई है वो यकीनन 1.5 से 2% बनती है, जो कि ना होने के बराबर है। वहाँ पर कहना है कि जो महंगाई की शरह है और महंगाई जिस तरह बढ़ रही है उसमें पेट्रोल और डीजल की महंगाई का बहुत बड़ा हाथ है। ताहम मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो डॉलर की कीमत में जिस तरह कमी हो रही है, इससे तो की जा सकती है अगर ये इसकी रफ्तार से डॉलर सस्ता हुआ तो आने वाले जो 15 रोज होंगे उसमें मजीद पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। ताहम इस वक्त आवाम का ये कहना है कि इस वक्त। ठीक है जाहिद, ये बताइएगा कि डीलर्स ने जो मार्जिन बढ़ाया है, क्या ये हुकूमत ने बढ़ाया या इन्होंने खुद बढ़ाया? जी बिल्कुल, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स मार्जिन जो है ये हुकूमती फार्मूले के तहत ही बढ़ाया जाता है और ओबरा इसकी बाकायदा मंजूरी देती है, और ये मुतालबात इनके चंद माह से चल रहे थे, जिस पर जो साबिक हुकूमत की जाते हुए PDM की हुकूमत थी उनकी और इनके मुज़ाकरात भी हुए थे, जिसमें तय पाया था कि बतदरीज 3 से 4 माह में इनके मार्जिन में इजाफा किया जाएगा। इसीलिए जो 16 सितंबर को कीमतों का तयन किया गया था उसमें भी इसी तरह का इजाफा किया गया था, तकरीबन 88 पैसे का, और आज भी इसी तरह का इजाफा किया गया, जो कि उस मुआहदे के मुताबिक है, जो कि हुकूमत और डीलर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के दरमियान तय हुआ था। और उनका कहना था कि अगर ये मार्जिन में इजाफा नहीं होता तो उनके लिए कारोबार जारी रखना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से सप्लाई चेन टूट सकती है और इस वक्त जो सूरत हाल है मार्केट में वो इससे मजीद खंभीर हो सकती है। इसलिए हुकूमत ने उनका मुतालबात
मानते हुए ये वादा किया था कि बतदरीज इनके मार्जिन में इजाफा किया जाएगा, जिस पर बतदरीज अमल दरामद किया जा रहा है। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सर्दियों से कबल ही एलपीजी महंगी कर दी गई है और ओगरा गैस 20 रुपये 86 रुपये महंगी कर दी गई है। एलपीजी की नई कीमत 260 रुपये 98 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर हो गई है और आपको अपडेट कर रहे हैं कि घरेलू सिलेंडर 240 रुपये 15 पैसे मज़ीद महंगा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल बताइए। जी, ओगरा ने सर्दियाँ आने से कबल ही एलपीजी सार्फिन को रगड़ा दे दिया और उसकी कीमत में 20 रुपये 86 पैसे का जो है वो इजाफा कर दिया है, जिसके बाद नई कीमत जो है वो जो मुकर्रर की गई है वो 260 रुपये 98 पैसे जो है वो मुकर्रर की गई है। आम सार्फिन के ऊपर जो है वो इजाफी बोझ जो है वो बढ़ने का खदशा पैदा हो गया, खुसूसन वो लोग जो घरों में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं या जो रिक्शाओं में और टैक्सियों में जो है वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत ने फिर 20 रुपये का इजाफा कर दिया एलपीजी की कीमत में, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस मुल्क में महंगाई कम नहीं हो सकती। हम गरीब आवाम है, किसी को नहीं पता, सब एसी के कमरों में बैठे हैं, किसी को नहीं पता कि गरीब आदमी किस तरह अपना घर चला रहा है। कभी पेट्रोल महंगा, कभी गैस महंगी है। इन्होंने बारियां बांधी हुई हैं, एक तरीक पे गैस महंगी करते हैं, दूसरी तरीक पे पेट्रोल महंगा करते हैं। आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। एलपीजी भी इन्होंने अब महंगी कर दिया है, पेट्रोल सस्ता कर दिया, अगली मरतबा पेट्रोल डीजल महंगा कर देंगे। गरीब आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। ओपन मार्केट में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कीमत जो है वो 280 और 285 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जो भी सरकारी रेट जो है मुकर्रर किए जाते हैं उस पर कहीं भी मार्केट में जो है वो एलपीजी फ़रोख्त नहीं होती। आवाम का ये कहना है कि हुकूमत ने एक तरफ तो जो है वो पेट्रोल थोड़ा 8 रुपये सस्ता किया, मगर दूसरी जानिब एलपीजी की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सार्फिन एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। घरों में भी गैस इस्तेमाल होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जो है वो एलपीजी इस्तेमाल होती है और एक बड़ा बोझ जो है वो सार्फिन पर डाल दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहील। महंगाई की गिरदाब में अवाम चकरा कर रह गए। सब्जियों की खरीदारी भी शहरियों के लिए आसान ना रही। मार्केट में टमाटर 200, आलू 100, प्याज 120 से 140 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगे। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 17 रुपये सस्ता। मार्केट में चिकन की कीमत 525 फ़ी किलो हो गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं सामिया से। जी सामिया। महंगाई में मुसलसल इजाफा आवाम के लिए खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। आज सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक टमाटर की कीमत में 5 रुपये इजाफा देखा गया है और सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक टमाटर की अब जो कीमत है वो 90 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। आलू जो है उसकी कीमत में आज 3 रुपये इजाफा कर दिया गया है और सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू की जो कीमत है वो 83 रुपये रखी गई है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल आलू जो है वो 100 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पर एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आप तो घर का खर्चा चलाती हैं, कितना मुश्किल है अब घर का खर्चा चलाना? बजट तो हमारा वही है। अब देखिए, तनख्वाहदार तबका जो है वो उसको बजट तो गुज़िश्ता 1 साल से वही मिल रहा है। 1 साल बाद ही तनख्वाह में थोड़ा बहुत इजाफा होता है ना, लेकिन महंगाई में, सब्ज़ी में, फलों में, हर चीज़ में इजाफा जो है वो दिनों के हिसाब से होता है, महीनों के नहीं बल्कि दिनों के हिसाब से होता है। हर चीज़ में डबल इजाफा हो चुका है। तो तनख्वाह में तो इस तरह इजाफा नहीं होता जिस तरह के कीमतों में, चीज़ों में इजाफा होता है। मुतवसत तबका जो है उसके लिए घर चलाना और उसको लेके आगे चलना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई में जो है वो दिनों के हिसाब से इजाफा हो रहा है। आए दिन किसी न किसी चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। जब भी यहाँ पर सौदा लेने के लिए आते हैं तो ये देखा जाता है कि पिछली बार की निस्बत इस बार जो कीमत है उसमें इजाफा ही देखा जा रहा है। आमदनी जो है वो बढ़ती नहीं है, लेकिन महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। खबर दें आपको, एफबीआर ने हदफ से भी 63 अरब रुपए से ज़्यादा जमा कर लिए हैं। रवा माली साल की पहली समाही में 1978 अरब रुपए का हदफ रखा गया था, जबकि एफबीआर ने हदफ से 63 अरब ज़्यादा 2041 अरब रुपए जमा कर लिए हैं। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में 1644 अरब रुपए जमा किए गए थे। तफसीलात जानते हैं राहील अली से। जी राहील बताइए। राहील से बात करने की कोशिश करेंगे। भी आपको बताएं, एफबीआर ने हदफ से भी 63 अरब रुपए ज़्यादा जमा कर लिए। रवा माली साल की पहली तिमाही में 1978 अरब रुपए का हदफ रखा गया। एफबीआर ने हदफ से 63 अरब ज़्यादा 20,041 अरब रुपए जमा कर लिए। गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में 1644 अरब रुपए जमा किए गए थे। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। रवा माली साल की पहली तिमाही में 1978 अरब रुपए का हदफ रखा गया, जबकि एफबीआर ने हदफ से 63 अरब ज़्यादा जमा किए। गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में 1644 अरब रुपए जमा किए गए थे।
खबर ने आपको गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में 1644 अरब रुपए जमा किए गए थे, जबकि एफबीआर ने हदफ से भी 63 अरब ज़्यादा जमा कर लिए हैं। रवा माली साल की पहली समाही में 1978 अरब रुपए का हदफ रखा गया था। एफबीआर ने हदफ से 63 अरब ज़्यादा 20,041 अरब जमा कर लिए हैं। ठोकर न्याज़बेग के इलाके में घर की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने दोनों अफराद को मलबे से निकाल लिया है। अफसोसनाक खबर है, ठोकर न्याज़बेग के इलाके में घर की छत गिर गई है और मलबे तले दबकर 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन अली, बताएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल का ये अफसोसनाक वाक़या है कि लाहौर के इलाके ठोकर न्याज़बेग पे एक घर की छत गिर गई थी। मलबे तले आकर जो है वो 2 अफराद जख्मी हो गए थे। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबे तले अफराद को जो है वो मलबे से निकाला और उसके बाद दोनों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद जो है वो करीबी अस्पताल मुंतकिल जो है वो कर दिया गया था। रेस्क्यू की जानिब से ये सुबह का अफसोसनाक वाक़या है कि एक घर की छत गिरने से 2 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आशूब चश्म के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। 24 घंटे में लाहौर में आशूब चश्म के मजीद 236 मरीज सामने आ गए। सूबे भर से आशूब चश्म के 1134 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में आशूब चश्म के मरीजों की मजमूई तादाद 8682 हो गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। आशूब चश्म के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। 24 घंटे में लाहौर में आशूब चश्म के मजीद 236 मरीज सामने आ गए हैं, जबकि सूबे भर से आशूब चश्म के 1134 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में आशूब चश्म के मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर 8682 हो गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्वस मरकजी मुलजिम सर्जन फवाद मुमताज़ खान पुलिस की हिरासत से फ़रार हो गया है। पुलिस रात की तारीकी में मुलजिम को जाए वक़ुआ की निशानदही के लिए लेकर जा रही थी। सजाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्विस बदनाम ज़माना सर्जन फवाद मुमताज़ खान मुश्किल से गिरफ्त में आया था, लेकिन आसानी से फरार हो गया। डॉक्टर फवाद मुमताज़ को चंद रोज़ कबल ही अटक जेल से लाहौर मुंतकिल किया गया। मुबैना तौर पर पुलिस के 5 एहलकार मुलजिम को जाए वक़ुआ की निशानदही करवाने के लिए ले जा रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिम असलहे के जोर पर डॉक्टर मुमताज़ खान को पुलिस की हिरासत से छुड़वा कर ले गए। सारा वाक़या थाना काहना की हदूद में पेश आया, जिसका मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। सर्जन फवाद मुमताज़ ने मुल्की समेत बेशुमार चीनी सऊदी बशिंदों के गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट किए। मुलजिम पर मारूफ मरहूम अदाकार उमर शरीफ की बेटी की हलाकत का इल्ज़ाम भी लगा था। ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं, एसाबी और ज़हनी कैफियत का नाम है। ऐसे अफराद आम लोगों से हटकर बर्ताव करते हैं। ऐसे बच्चों को ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत होती है। जबकि सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज़ की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, ऐसे अफराद गाड़ियों को ख़ुसूसी स्टिकर्स जारी कर रहे हैं। आज से 1 हफ्ता पहले ट्रैफिक पुलिस ने ऑटिज़म अवेयरनेस वीक शुरू किया। उसका मकसद ये था कि आम लोगों को, शहरियों को, ट्रैफिक पुलिस को ऑटिज़म के बारे में अवेयरनेस दी जाए। इसमें हमने अपने जो ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनके ट्रेनिंग सेशंस करवाए। मिस मारिया हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका अपना बच्चा ऑटिज़म का शिकार है और ये हमारे एक पुलिस ऑफिसर की बेवा हैं। इन्होंने ये बेड़ा उठाया कि ये इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करेंगी, हमारे ऑफिसर्स को एजुकेट करेंगी। इसके दूसरे सिलसिले में हमने शहरियों को एजुकेट किया। शहर में मुख्तलिफ जगह पे एजुकेशन कैंप्स लगाए। एजुकेशन कैंप्स में लोगों को अवेयरनेस दी गई कि जिन गाड़ियों पे ऑटिज़म के या स्पेशल नीड के स्टिकर्स अवेलेबल हैं, उन गाड़ियों के साथ खुसूसी बर्ताव किया जाए, उनको स्पेशल स्पेस दी जाए, अकोमोडेट किया जाए और फैसिलिटेट किया जाए। तीसरे फेज़ में हमारे जो खिदमत मराकज़ हैं और हमारे जो बाकी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हैं, वहाँ पर हमने स्पेशल नीड्स के, ऑटिज़म के, डेफ एंड म्यूट के और बाकी न्यूरोलॉजिकल डिवर्स और बाकी जो तमाम स्पेशल नीड्स हैं उनके स्टिकर्स रखवाए, ताकि पेरेंट्स अपने आप को आके वहाँ पर रजिस्टर करें, उनको वहाँ पे स्टिकर्स हासिल हों और उस स्टिकर्स के साथ उनको सर्टन प्रिविलेजेस मिले, जैसे नो पार्किंग स्पेस में वो गाड़ी इमरजेंसी में पार्क कर। शहर के तमाम गिरजाघरों की सिक्योरिटी सख्त। लाहौर पुलिस के 1000 के करीब अफसरान और एहलकार तैनात कर दिए गए। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की डॉल्फिन PRU और पुलिस को गश्त करने की हिदायत भी की गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, मुमकिन दहशतगर्दी से बचने के लिए गिरजाघरों की जो सिक्योरिटी है वो सख्त कर दी गई है और इस वजह से सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो लाहौर पुलिस की तरफ से जारी किया गया है।
DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का इस हवाले से कहना है कि शहर के तमाम गिरजा घरों की भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। लाहौर पुलिस के 1000 करीब अफसरान और एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात हैं। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की हिदायत पर शहर के एंट्री पॉइंट पर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है कि मसीह बातगाहों पर तैनात जवान अलर्ट हैं और गिरजा नवाब पर जो है वो कड़ी नजर रखे हुए हैं। आला जो अफसरान हैं जो जिसमें DSP और SP शामिल हैं वो भी हिफाजती इंतजाम जो हैं वो खुद चेक कर रहे हैं। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का मजीद कहना है कि गिरजाघरों में दाखिले से कबल जो है वो हर फर्द की तलाशी दी जा रही है। अदालतन, पीरो और थाने की गाड़ियाँ जो हैं वो मुसलसल जो है वो गश्ती कर रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आपने तफसील निगाह किया। और अब बात करते हैं मौसम के हवाले से। शहर का मौसम कदरे खुशगवार है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी फिर से सर उठाने लगी है। सामिया सईद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। सूरज के तीखे वार मगर शहर का मौसम कदरे खुशगवार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। हवा में नमी का तनासुब 63% रिकॉर्ड किया गया। मौसम सरमा का बाकायदा आगाज नवंबर से होगा जो फरवरी तक जारी रहेगा। फिजाई आलूदगी ने लाहौर में फिर डेरे जमा लिए। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया। कैमरा टीम के हमरा सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बुजुर्ग अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बदलती हुई दुनिया में बुजुर्गों को दरपेश मसाइल बारे आगाही, उनका ख्याल रखने और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ना है। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। बुजुर्ग अफराद की अहमियत, उनकी तकालियत, ज़रूरियात और हकूक़ की जानिब तवज्जो दिलाने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम आलमी यौम बुजुर्गा मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये शऊर बेदार करना है कि उम्र रसीदा अफराद मुआशरे का कीमती सरमाया है। बुजुर्ग शहरियों के हकूक़ की पासदारी और उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाए। बरतानवी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्गों के मायारी जिंदगी के हवाले से बेहतरीन मुल्क नॉर्वे और स्वीडन करार, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में आए हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 25% आबादी 60 बरस से जायद के बुजुर्ग शहरियों पर मुश्तमिल है। बुजुर्गों के साथ बदसलूकी दीन इस्लाम में सख्त नापसंदी अमल करार दिया गया है, जबकि उनके एहतराम को गैर मामूली अहमियत हासिल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि माँ बाप के साथ नेकी करो और अगर तेरे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ भी ना कहो, ना उन्हें झिड़को और उनसे अदब से बात करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा हमारी रहनुमाई की और हमारे हाथ थामे। हमें बुजुर्ग शहरियों को बूढ़ा कहने के बजाय उनकी महारत और तजर्बात से फायदा उठाना चाहिए। पेट्रोल सस्ता करके गैस महंगी कर दी गई। सदर से लेकर नीचे तक सब एतराफ़ कर रहे हैं हालात खराब हैं। हम हर वाक़े पर मातम करते हैं फिर भूल जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का यूथ टैलेंट अवार्ड कन्वेंशन से खिताब बोले, आज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब तरक्की कर रहे हैं। हमारा खिता एक है, मौसम एक है, रंग एक है, हम पीछे क्यों हैं? आज मैंने अखबारात पे नज़र डाला तो एक खबर यह थी कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल के 1 लीटर में 8 रुपया की कमी की। साथ वाली खबर यही थी कि हुकूमत ने गैस की कीमत में 20 रुपया का इजाफा किया। मेरे प्यारे भाइयों, मैं बाजारों में रहता हूँ, गुजरता हूँ, लोगों को देखता हूँ। हकीकत यह है कि लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब है। एक खौफ है, बेयकीनी है, चारों तरफ एक तबाही, एक बर्बादी। जिम्मेदार कौन है? सदर से लेकर वजीर आजम से लेकर एक पुलिस तक सब एतराफ कर रहे हैं कि हालात खराब है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।
ہم جس علاقے میں رہتے ہیں جنوبی ایشیا، ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، 40-50 سال وہاں لڑائی رہی، ایک اچھی حکومت آئی اور آج ان کی کرنسی ترقی کی طرف، ہمارے ملک کا سابق حصہ ہے بنگلہ دیش، ترقی کی طرف، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، انڈیا، آسمان ہمارا ایک ہے، موسم بھی ہمارا ایک ہے، ہمارے رنگ بھی ایک جیسے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ چاروں طرف لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں؟ انڈیا نے تو چاند پر قدم رکھا، ہم 5 سمندروں کے مالک ہیں، دریاؤں کے مالک ہیں، ہم 1000 کلومیٹر ساحل کے مالک ہیں، ہم زرعی زمین رکھتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا عطیہ 4 موسم موجود ہے، ہمارے پاؤں تلے سونا اور چاندی کے ذخائر موجود ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہر صبح تباہی کے خبر کے ساتھ اور ہم ہر شام تباہی کے خبر کے ساتھ، کون ذمہ دار ہے؟